इसमें पहले तो बहुत ही माड़ी हालत थी, कोई यहाँ आने से भी डरता था, ले आता था गोडे गोडे। अब 4-5 साल से जब से ये सरपंच साहब बने हैं उसके बाद ये दीवारें निकली हैं। एक ऐसा गाँव है मल्ले का जिसमें 2 वाटर वर्क्स हैं, एक तो अभी बन गया और दूसरा इसी पंचायत के टाइम में हमारी जो पंचायती ज़मीन थी उस पर लगा हुआ है। की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं इलाहाबाद विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में शामिल है मलेका। 2016 के अंदर चुनाव हुए थे, पढ़े लिखे पंचायत बने थे। गांव के मौजूदा सरपंच रमनदीप सिंह, जो जिनके पिताजी जगदेव सिंह जी गांव के 3 बार सरपंच भी रहे हैं, उनके सपुत्र रमनदीप ने
2016 के अंदर अपने प्रतिद्वंदी लाली त्रिलोचन सिंह लाली को हराते हुए 1100 वोटों से लगभग मात दी थी। आज उनकी ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए हम पहुंचे हैं कि आखिर उन्होंने 4.5 साल के अंदर क्या काम करवाया है, कैसे कैसे उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ गांव के लोग भी होंगे, सरपंच भी होंगे, इनसे हम बात करेंगे। नाम दसो। ਉਹ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ नहीं नाम में बता दो, फोटो आ रही है सब में। चंद सिंह ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ ਆ ਚੰਦ ਰਹੀ ਸਿੰਘ। तो बापू जी ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 2016 से ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਰਮਨਦੀਪ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਛੱਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਗਲੀ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬਣਾਈ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆ ਮਿੱਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਜੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਕਰੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲਵਾਇਆ। ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤ ਬੰਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਾਲੇ चौक 'ਚ। बापू जी आपका नाम बताइए मेरे को। इस सरपंच की बात करूँ, इस सरपंच ने कितना काम कराया इस पंचायत में? हाँ हो गया हाँ जी आप बताइए बापू जी। बूढ़ा हो गया बड़ा तो बूढ़ा हो गया तो बता दो, काम बता दो। एक पहले ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬਤਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ? ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਛੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ। ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚ। ਆ ਬਤਾਈਏ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰਾ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੁਵਾ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ, ਉਹ ਖਰਿਆ ਉਤਰਿਆ हाँ ਉਮੀਦਾਂ? खरा उतरा जी, उम्मीद पे पूरा ठीक पूरा ही उम्मीद नहीं है। है। हाँ, साथ लेकर चलता जी। साथ लेके हाँ, चले। साथ लेकर। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ। थोड़ा तेज बोलिए। गुरजंट सिंह मेरा नाम है। गुरजंट सिंह। गुरजंट सिंह, मेरे बताओगे कि आप यूथ होने के नाते इस गांव के सरपंच ने युवाओं के लिए कितना का काम किया है? बहुत अच्छा, क्या काम किया मैंने? सभी काम किए। जो भी चौक है, जो गली सब बनी हुई है। जी नहीं सब नई बनाई हुई है। सब नहीं बनाई हुई। ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ हाकम सिंह जी की खेती कारोबारी करते हो बापू जी? ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫੱਟੇ ਜੁਗ ਰਹੇ ਹੀ अरे ਹਾਂ। फटे जोगे थे। ਹਾਂ, ਹੁਣ तो ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਰਮਨਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕੰਮ ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਚਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਆ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਨੂੰ। अच्छा साफ हो रही है। ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖ ਲਾ, ਹੁਣ ਜੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। तो बापू जी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ? ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕੁਮ ਕੀਤੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਹ ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਨੇ ਅਜੇ ਨਾ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣ ਤੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਅਗਲਾ ਭਤੀਜਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੌਣ, ਜਗਦੇਵ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨ? ਰਮਨ, ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਗਦੇਵ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। तो पहले एक पंचायत ते बापू जी रहंदी सी, एक हुण पंचायत बनी है। इस पंचायत दे कम ज्यादा होए, पहले पंचायत कम ज्यादा होए सी? ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਲਾ ਸਰਪੰਚ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਗਈ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 15 ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਚਟਾਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾਲਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਧਰਮਪਾਲ ਦਰਪਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ। ਜ਼ਮੀਨ। ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਹੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਂ ਤਕਨੀਕ ਆਉਗੀ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏ। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆਪਕੇ? ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੋ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦਾ? ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਆ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਟੈਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ? ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ? ਕੰਧਾ ਕੁੰਦਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਅੱਛਾ ਸਫਾਈ ਕਰਤੀ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਬਾਟੇ ਵਧੀਆ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਛਾ।
ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਮਨਦੀਪ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਲੀਆਂ ਸਰ ਲਗਭਗ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗਰੂਪ ਮੈंने ਸੁਣਿਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਰ ਬੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਟਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਾਂ ਟਾਣੀਆਂ ਟੂਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੈਸੇ ठीक है चंगे काम करी जाते ठीक काम किया है एक इस परिवार से पहले भी सरपंच रहे उन्होंने ज़्यादा काम किया था इसने किया भी ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਿਆ ਸੀ अच्छा जी ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ जी इसने उसने किया काम ਹਾਂਜੀ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ये आपका दौलतराम है जी। दौलतराम जी की काम करते हो अब मुझे नरेगा में काम करा जी। नरेगा काम दिहाड़ी थोड़ी ठीक मिलती हाँ जी है बहुत बढ़िया दिहाड़ी मिली बढ़िया मिलती है हाँ जी मकान भी अपना है मकान भी मिले अपन अच्छा कार्ड भी ऐसा सरिया किन्नू देंदे हो हाँ जी सरिया किन्नू देंदे हो सारा समझ नहीं लगी मेरी सारा यानी सिस्टम किसको देते हो किसने दिलाया आपको किसका शौक है शो जो सरपंच के मैं तो सरपंच ही है अच्छा, सरपंच है ऊपर प्रधानमंत्री है पूरी योजना आवे जो अपने सब मिले जी अच्छा जी गरीबन जो भी आवे जो सारा मिले मिलती है हाँ जी सब मिले तो आपके बाद दोबारा बनाओगे इस सरपंच को क्या अब तो माहौल देखा हो जब हमारे सरपंच खड़े हो उम्मीद तो यही है भी सरपंच बनावागा इसको दोबारा हाँ अच्छा आगे फिर माहौल होगा। जगदीश नाथ जी की काम करते हो ये मांगने खाने का काम करते हैं। मांगने खाने का हाँ तो बाबूजी बताओगे आपके गांव के अंदर पंचायत बनी थी पढ़ी लिखी उस पंचायत ने कितना काम करवाया बहुत अच्छा काम करे। आपका कोई काम करवाया हाँ, हमारा ये रास्ते का काम हो रहा है इससे ऊपर क्या और कोई और कोई काम नहीं था रास्ते का कैसे ये रास्ता लेके दिया ये पक्का बना रहा कंध निकाल दी अच्छा और परली गली भी पक्की बना दी अच्छा बहुत अच्छा काम इस काम से संतुष्ट हो रही हो आप हाँ अच्छा आप बताइए बाबूजी आपसे ये आपका क्यों रास्ता आपका बना रहा है ये सरपंच सरपंच बना रहा है सही काम करे सरपंच तो जी बाकी कई सरपंच है कुछ नहीं करे कुछ भी नहीं करते जी बस ये सरपंच बनाया भाई ये बना दिया बस इतना ही बहुत है जी बस पहले रास्ता है ही ना कुछ भी नहीं था निकलने का रास्ता नहीं था और क्या आप बताइए भाई साहब आप यूथ होने के नाते क्या बताओगे कि कुल में आपके गांव के ये सरपंच जी सरपंच ने मेंबर के थ्रू सारा रास्ता दिया है गांव पंचायत की तरफ से समझ रहे हो ये पक्का बन रहा है ये सरपंच साहब बनवा के दे रहे हैं जी ठीक है ये अभी पक्का बनेगा इसमें क्यों भर्ती आपको पढ़ ही के क्यों बनवा के दे रहे और भी है क्योंकि वादा किया था ये पहले ही ठीक है पहले ही कहा था भाई ये रास्ता पक्का बनवा के दूंगा समझ रहे हो हमने पहले उनको कब इलेक्शन में इलेक्शन में ठीक है हमने उनको जताया उनको सम्मान दिया समझ रहे हो जब ये हमारा उन्होंने काम कराया जी समझ रहे हो जो आपने उम्मीद लगाई थी सरपंच वो हमारी पूरी होगी पूरी हो गई हाँ जी तो आगे की क्या है आगे के सरपंच बनाओगे दोबारा क्या इसको आगे भी हम इसी को ही बनाएंगे आप बताइए बाबूजी किसको बनाओगे दोबारा जो पहले है यही रहेगा सरपंच पहले तो बहुत सरपंच आए खाने वाले आए हैं बनाने वाले कोई नहीं आया तो इसने जगदेव ने उसके लड़के ने अच्छा काम कर रहा अच्छा काम किया अच्छा काम दोबारा कर सरपंच बनाओ इसको मेन तो है इसी का ही आगे मुकदमा जिताएंगे इसको पूरा धूमधाम धूमधाम से जिताएंगे इसको आप बताइए बाबूजी क्या नाम आपका मेरा नाम तो धर्मवीर है जी। धर्मवीर जी क्या काम करते हो मैं तो ठेका का काम करूँ जी चिनाई का। चिनाई का तो चिनाई का काम सरपंच के हाँ जी तो कितना का काम करा है सरपंच के आपके हाथ से लगा आप हमारे आदमी को 2-2.5 करोड़ रुपया हम काम जरूर करिए जी। तो एक पहले की पंचायतों में काम होता था एक अब की पंचायत नहीं में काम जी हुआ है। पंचायत में बहुत ज़्यादा काम हुआ बहुत काम हुआ है। इसमें हाँ मैंने लगभग 4 साल हो गया और लगभग 20 आदमी आएंगे लेबर है मेरे को ना। अच्छा जी मैं इन गाँव में और पास से काम करूँ जी हाँ पर इनमें परमानेंट काम चलते ही रहे जी। इन गाँव में परमानेंट करो। हाँ जी बलविंदर सिंह जी। बलविंदर जी बताओगे पहले इसकी गांव शमशान घाट के अंदर खड़े हो पहले क्या हालत थी अब क्या हालत है इसकी इसमें पहले तो बहुत ही माड़ी हालत थी कोई यहाँ आने से भी डरता था ले आता था गोडे गोडे। अब 4-5 साल से जब से ये सरपंच साहब बने हैं उसके बाद ये दीवारें निकली हैं बरांडे बने हैं सड़कें बनी हैं भट्टी दोबारा बनी है अब हालत बहुत सही हैगी है जी सब बिल्कुल सही है। पहले की सरपंच ने की काम करवाया और ये सरपंच ने तो लैटरिन बाथरूम बनवाए गए जी ये टूटियाँ लगवाई हैं दीवार निकलवाई है ये सड़क बनवाई है ये बरांडा बनवाया है जी ये 2-3 भट्टी बनवाई है जी ये करवाया है। ਜਿਹੜੀ तो बाबूजी ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਕਰਿਆ ਉੱਤੇ हाँ जी ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ हाँ, ਪਿੰਡ पूरा 'ਚ ਕਿੰਨਾ काम ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ पिंड तो गलियां गुलियां करीब सारा ही हो चुका है जी
कोई थोड़ी बहुती गली रह गई तो कह नहीं सकते, नहीं तो पिंड काम पूरा करवाया है। की करदा का मुंडा वो मुंडा हाँ जी रमन रमन तो वो तो बस खेती बाड़ी करता है, ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ है। पंचायत घर भी है बनवाया, हम शेड बनवाया इन्हें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव का ग्राम सचिवालय है मलेका का। आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हो तस्वीरों के अंदर भव्य शेड का निर्माण किया गया और पंचायत घर हैं जो अटल सेवा केंद्र का जिसको नाम दिया गया था, उसके अंदर बढ़िया एक साफ़ सफाई के तहत यहाँ पर अच्छे बरामदे और अच्छे कमरे तैयार किए गए। इसी बीच सामने है यहाँ का गांव का एक गांव का गौरव पट होता है, वो इस बीचों बीच यहाँ पर स्थित हैं। इस गांव का इतिहास इस पे लिखा हुआ है, गांव मलेका खंड एलनाबाद जिला सिरसा गांव का इतिहास। गांव मलेका हरियाणा राज्य सिरसा ज़िले में स्थित है। गांव मलेका का नाम प्राचीन नाम मुसलमान मालिक खान नाम से था, जो कि बाद में मलेका हो गया। इस गांव में सभी जाति के बिरादरी के लोग रहते हैं। यहाँ की मातृभाषा जो ज़्यादातर है पंजाबी है। आप दूसरी तस्वीरों के अंदर देख पा रहे हो, ये यहाँ पर दानवीर जो गांव के लोग हैं उनके नाम लिखे गए। माना सिंह पुत्र उत्तम सिंह, गुरबख्श सिंह पुत्र मंगल सिंह, देवेंद्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह, जो इस गांव के दानवीर सजन हैं। ये सिद्धो राखी को की मैं यही राखी सेना के अंदर स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, उनके नाम दिए गए हैं, जो अभी 2 मौके पर अभी हैं, और 2 स्वर्गवास हो गए, एक सौदागर सिंह और कन्हैया लाल, जिनका भी स्वर्गवास हो गया, जो भारतीय सेना और स्वतंत्रता सेनानी थे। नाम बताइए आपका। मेरा नाम छिंदरपाल है। छिंदरपाल जी, 2016 के अंदर आपके गांव के युवा सरपंच बने थे, उनसे आपने क्या उम्मीद की थी, वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं? हाँ जी, वो हमारी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरे हैं जी। उन्होंने हमारे गांव में बहुत सारे काम कराए हैं जी। युवाओं के लिए क्या किया आप? युवाओं के लिए युवाओं में उस सरपंच ने हमारे यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र चलाया था ये, जो हमारे यहाँ पर नशा मुक्ति गाँव किया था, उन्होंने बहुत सहयोग दिया था हमारे सरपंच ने यहाँ पर जी। और युवाओं के लिए बहुत खेलों के प्रति क्या रहा सरपंच साहब का? खेलों के प्रति उन्होंने बहुत से कबड्डी कराते हैं, आप खुद खिलाड़ी हैं कबड्डी के। उन्होंने आए साल यहाँ पर हमारी टूर्नामेंट होती है, युवा खिलाड़ी बहुत निकलते हैं जी। तो इसका श्रेय किसको देना चाहते हो सबसे ज़्यादा आप? सरपंच को ही जी। उन्होंने गांव के युवाओं को बहुत सहयोग देते हैं खेलों में। मेरा नाम रूबी संधू है जी, निकनेम वैसे जसजीत सिंह संधू है। रूबी जी, मेरे को बताओगे आपके गांव के अंदर 2016 के अंदर पंचायत बनी थी, हाँ जी। तो उस पंचायत ने कितना का काम पूरा आपके गाँव में? हमारे गांव में काफ़ी काम हुए जी। पहली बात तो एक ऐसा गांव है मल्लेका जिसमें 2 वाटर वर्क्स हैं। एक तो अभी बन गया और दूसरा इसी पंचायत के टाइम में हमारी जो पंचायती ज़मीन थी उस पर लगा हुआ है। तो आप मान के चलिए कि जितनी भी आबादी मेरे गांव की है, सबको फिल्टर वाला आप ये मान के चलो कि आरओ जैसा पानी मिलना शुरू हो गया जी। ठीक है। दूसरी बात अगर करें तो गलियों की, हमारे गाँव में आपको एक भी कच्ची गली नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि अब तो पिछले 6 महीने में तो ये प्रोसेस आ गया था कि लोगों की खेतों वाली सड़कें हैं, उन पे भी जो ईंटों की सड़कें हैं वो बननी शुरू हो गई हैं। मेरे ख्याल से 2-3 बन भी गई हैं जी। तो गांव में तो किसी प्रकार की कमी नहीं है। बस अड्डा तो चलो उस मिनिस्ट्री का काम है, उसके आगे जो सफाई है, वहाँ शेड बनना है, वो भी इसी पंचायत का काम है। अगर दूसरे बातों में देखा जाए, हमारा ई दिशा केंद्र जो गाँव में बना हुआ है, वहाँ काफ़ी लोगों के काम सरल ढंग से हो रहे हैं, जिनको शहर नहीं जाना पड़ रहा जी। हाँ जी। तो बाबू जी, मेरे को बताओगे जो पहले की आपने उम्मीद लगाई थी 2016 के अंदर सरपंच से, वो उम्मीदों पर खरा उतरा है? देखिए 100% रिजल्ट तो आपको मैं ऐसे नहीं कहूँगा, दावे करूँगा नेताओं की तरह कि हमने 110% काम कर दिया, मगर उसमें कोऑर्डिनेशन चलती है। मगर उस हिसाब से जितना हमारे पास गांव में पैसा आया, जो भी लगा है, वो बहुत सही ढंग से पंचायत ने काम किया और अच्छा काम किया है। युवाओं के लिए इस पंचायत ने क्या किया रमनदीप ने? हाँ, रमनदीप तो शुरू में आइकॉन ही युवाओं का है, क्योंकि इसको जुटाने में भी युवाओं का हाथ रहा है। तो अब भी हमारे गांव में ठीक चल रहा है कि नशे के खिलाफ भी युवाओं ने काफ़ी मेहनत और पीछे संघर्ष भी किया था कि पुलिस के साथ मिलकर इसको कम करें। नशे के खिलाफ भी युवाओं की मुहिम चलती रही है। अब भी थोड़ी सी मेरी भी ये सुझाव कि युवा एक बार इकट्ठे हो जाएं तो गाँव में कुछ सफाई का काम भी हो जाए। और दूसरी बात, जब कोरोना काल रहा है तो पंचायत के मेंबरों ने रल मिल के, जो हमारे गांव का कोई भी भूखा व्यक्ति था या जिसके पास काम नहीं था, वो हमारी पंचायत की जिम्मेवारी, इन घरों की जिम्मेवारी थी कि अनाज इकट्ठा करके उनको पका के रोटी खिलाई गई है। हाँ जी। एक हमारे यहाँ बस्ती है जहाँ
नाथ बिरादरी के लोग रहते हैं, तो उनकी गली थी, बेचारों के पास रास्ता नहीं था। वो पंचायत ने सम्मिलित पैसे इकट्ठे करके जिस भाई की वहाँ ज़मीन लगती थी उससे मोल लेके रास्ता देके पंचायत ने फिर उसको पक्की करवाने का, दीवार निकालने का, उन 15-20 घरों को जो रास्ता ही नहीं था वो भी हमारी इस पंचायत ने दिया है। और अगर आप गरीब तबके में भी जाओगे, थेड़ पे भी जाओगे, तो भी आपको गलियाँ हैं पक्की मिलेंगी इंटरलॉकिंग से। ये काम हमारी पंचायत ने काफ़ी दृढ़ता से और बड़े सफल परिणामों के साथ। मेरे को गांव के अंदर 2016 के अंदर आपके गांव में पंचायत बनी थी, उस पंचायत ने कितना का काम करवाया? पहले की पंचायतें बनती थी आपके गांव में, अब की बात पंचायत उससे ज़्यादा बेहतर काम हुआ है। गलियाँ पक्की हैं, हमारे बस स्टैंड बहुत बड़ी बन गया, पंचायत घर बन गया बहुत अच्छा जी। युवा सरपंच हैं, बहुत देख रेख करते हैं काम की। पानी की सुविधा है, वाटर वर्क से हमारे 30 करोड़ का शायद उसका बजट है, वो भी पास हो गया हमारे। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ उम्मीद लगाई सी सरपंच से, उससे भी ज़्यादा बेहतर काम किया उन्होंने, उससे बेहतर काम किया। आपने उनको कितना का शौक किया? हमसे हो गया है। मेरे को पंचायत उन्होंने मेरे को चेयरमैन बनवाया है, हमने उनको हर तरह से मोटिवेट किया है। मैं पंचायत का इस टाइम मैं मौके का चेयरमैन हूँ बैंक का, उन्होंने मेरी सपोर्ट भी की है। हमने भी गांव में हर तरह का सहयोग किया है। सपोर्ट की तब कह रहे हो कि ऐसे? नहीं, बिल्कुल काम किया। हर गांव में जाके देखो, कोई ऐसी इंटरलॉकिंग गली नहीं है, वो सब बन गई है। कोई एक आधी छोट-पुट शायद रह गई, इतना बड़ा गांव है, 15-20 हज़ार की पॉपुलेशन, हर आदमी खुश है। हर घर में पानी पहुंचा है, हर घर में पाइपलाइन गई है। जो ढाणियों में वहाँ भी सड़कें बनी हैं। अब ऐसी मल्लिका की शायद एक आधी छोटी-पुट गली हो भाई जो ना बनी हो, बाकी सब सड़कें बनी हैं। विजिट करने के बाद मेरे साथ में है इस गांव के युवा सरपंच और युवाओं के प्रेरणा स्रोत कहे जाने वाले और आइकॉन और कबड्डी के खिलाड़ी, अभी तक कबड्डी खिलाड़ी हैं और गांव के मौजूदा सरपंच रमनदीप सिंह जी ढिल्लो युवाओं को अक्सर प्रेरित करते हैं कबड्डी के लिए, खेलों के लिए हमेशा आगे रहते हैं। इनसे बातचीत करूंगा तब जो 2016 के अंदर गांव के सरपंच बने थे, इनके पास क्या मुद्दे थे, क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में गए थे और उन मुद्दों को कैसे इन्होंने पूरा किया। सरपंच साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਲੇਕਾਂ विजिट की, बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, सबसे पहला मेरा ये सवाल है, 2016 के अंदर आपके विधान लोक पंचायती चुनाव थे, तो उस टाइम आप लोगों के बीच में जा रहे थे, लोगों की बड़ी समस्या उस टाइम क्या आ रही थी आपके बीच? उस टाइम सब तो ज़्यादा बड़ी समस्या साडे पिंड दी सी भी जो किसी से भी आप कंपेनिंग करते हैं, जो जाते सी तो सब तो वड्डी समस्या सी साडी पानी दी, पीने वाले पानी दी जी। सो ओहदा असी पहल के आधार पर ओहदा असी हल किया। सरकार दे मतलब साथ दिता सरकार ने। साडे पिंड दे चीफ साहब सीगे पब्लिक हैल्थ दे जी, तो असी एक नवा साडे वाटर वर्क्स बने, सानूं ओहदे नाल सानूं बहुत फायदा होया उस चीज़ जी। तो सरपंच साहब, और बात करूँ सड़कों की, गलियों की, उनकी समस्या आपको कितनी की थी उस टाइम? जी देखो, पिछे भी जो सरपंच सी काम उन्होंने भी कराया, पर देखो एक सरपंच कोई भी पिंड दा हुंदा वो आपदा काम सारा भी पूरा नहीं कर सकदा ते काम रह जांदा। ਅਸੀਂ 95% ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀਆਂ वो ਅਸੀਂ ਹੁਣ आने वाले टाइम से 6 महीने साढ़े पे कर देंगे पक्की। सरपंच साहब, मैं एक कॉलोनी के अंदर गया, उधर नाथ कॉलोनी थी, वहाँ पर वो बताते हैं कि उन्होंने आपने उनको यानी ज़मीन खरीद के दी है, तो उनसे क्या वादा किया था? ऐसा है आपने किया अपने पर्सनल खाते से उनको एक आपने रस्ते दिया है? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਥ ਮੁਹੱਲਾ ਥੇੜ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਨਾਥਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਾਧਨ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਘਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ साडा चल रहा। तो सरपंच साहब, आप एक अच्छे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हो, युवाओं के आइकॉन भी हो और अच्छे कबड्डी के खिलाड़ी भी हो। फिर आपके गांव की बात करूँगा, ठीक है, आपका गांव कबड्डी के अंदर बहुत आगे रहता है, लेकिन औरों खेलों के अंदर पीछे हैं अभी तक, क्योंकि यहाँ पर स्टेडियम का अभाव है, स्टेडियम अभी तक नहीं बन पा रहा है। सरपंच साहब, क्या कमी मानते हो, क्यों नहीं बन पा रहा? देखो जी, स्टेडियम तो सानू गौरमेंट तरफों भी सानू आया भी तुसी जगह दिओ, सानू ज़मीन दिओ, पर साढ़े को पंचायती ज़मीन साढ़े को पिंड दे नेड़े कोई है नहीं। साड़ी ज़मीन पंचायती पिंड तो 6-7 किलोमीटर दूर है। सो सानू उन्नी दूर बनाने का कोई फायदा नहीं, क्यों गरीब बच्चे तो उत्थे फिर भी नहीं जा सकते जी। सानू को ऐसी इन्नी दूर बनाने से सानू कोई फायदा तो है नहीं।
फिर भी सरपंच साहब कोई प्रयास और कुछ खरीदने का, रिप्लेसमेंट करने का प्रयास किया हो आपने? नहीं देखो जी, रिਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ जी। तो सरपंच साहब, आप अच्छे कबड्डी के खिलाड़ी हो, आप अक्सर यहाँ पर टूर्नामेंट भी कराया करते हो, और छोटी सी आपके गांव में सोसाइटी है, तो उसके अंदर प्रदेश से, पूरे देश से आप खिलाड़ियों को उन्हें इनविटेशन देते हो और आते भी हैं, तो वो कैसे मैनेजमेंट करते हो आप? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਹਰੇਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਆਵੇ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ, ਸੋ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦਾ ਰੱਖੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੁਪਏ ਜੋ ਵੀ ਆਪਦੀ ਬਚਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ ਤਰਫ ਲਾਵਾਂ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਜਾਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ पैसे जो भी आप दे सकते हैं वो दिन्ने ਅਸੀਂ। सरपंच साहब, आप नशे पर भी एक आपने गांव के अंदर अभियान चलाया था, वो कहाँ तक आपका अभियान सफल हो पाया गांव के लेवल पर? हाँ जी, एक कोशिश ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਰੀ, ਐਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ। तो कितना का सफल हो पा रहा है सरपंच साहब आपका? ਸਫਲ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਥੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਓ, ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ करा। तो सरपंच साहब, और मैं बात करूं आपके विकास की बात करूं, शमशान घाट बना हुआ है पास में, तो शमशान घाट के अंदर देखा भव्य अच्छे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, अच्छे वहाँ पर विचारधीन वाला बात कह सकता हूँ मैं, तो क्या आपको उस चीज़ को आइकॉन मान के आपने उस चीज़ को पूरा किया? देखो मेरा शुरू तो ही मतलब ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ 'ਚ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ जी। तो पंचायत घर की बात करो, अटल सेवा केंद्र आपने अच्छी तरह से चला रहे हो सरपंच साहब। ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਿਜਕਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ CSC ਸੈਂਟਰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਟਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ फ़ायदा ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮ ਵਗੈरह ਫਿਲ करने वो सारे कुछ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। तो सरपंच साहब, आगे की अभी क्या रणनीति है? जितना आपने काम गांव के अंदर काम करवाया है, बस स्टैंड भी आपके कार्यकाल के अंदर बना ना शायद? हाँ जी हाँ जी, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੱਲੇਗਮ ਆਪਣੇ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। तो सरपंच साहब, इतना काम कराने के बावजूद लोगों ने आपसे बहुत अच्छी विचारधारा वाली बात कही है आपके लिए, तो अभी आपका क्या इरादा है कि दूसरे, मैं यूँ कहूँगा 6ठी 7वीं बार आगे सरपंच इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि इससे पहले आपके फादर भी रहे हैं? हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਕ 1 ਸਾਈਡਡ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਗਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, तो उन्होंने जो उन्होंने इच्छा होगी वो अनुसार ही होगा। नहीं सरपंच साहब, गरीब लोग तो ये कह रहे हैं कि सरपंच बहुत अच्छा, ये मतलब बहुत लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है, युवाओं को वास्तव में आइकॉन है ये। तो नहीं, आप अपनी कोशिश सदा माता पिता ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ,
ਜੀ ਸੋ ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। चलो शुभकामनाएं सरपंच साहब बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। चलो ये थे मेरे साथ में गांव के लोग और मौजूदा सरपंच थे रमनदीप सिंह ढिल्लो। युवाओं के आइकॉन थे, कबड्डी के खिलाड़ी भी थे और गांव के सरपंच भी थे। कैसे लगी इनकी बातचीत हमारे को ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अपने गांव के अंदर कितना काम हुआ है आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं भी उस गांव की विजिट कर सकूं। वास्तव में मलेका एक शहर की तर्ज पर बना हुआ गांव है, काफ़ी इसके अंदर सुधार हुआ है। पहले को देखने को कुछ और हुआ करता था, लेकिन आज इसकी धरातल की रिपोर्ट देखी तो वास्तव में कुछ संगीन सा मेरे को महसूस हुआ। आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताएं हमारी रिपोर्ट कैसे लगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रही। धन्यवाद।